has been a journey filled with groundbreaking ideas, thought-provoking discussions, and visionary insights that have truly broadened our perspectives on the future of education. As we come to the final leg of our conference, we have a power-packed closing session lined up, starting with the highly anticipated Teacher Warrior panel discussion. This panel is all about celebrating the unsung heroes of our classrooms, the teachers who are at the forefront of shaping the minds of tomorrow. Moderating this insightful discussion will be Mr. Dhruv Chabra. Please come on the stage and welcome our heroes. Hello everyone, good afternoon. So we proudly present our esteemed teacher warriors to you. Every year in July, School News embarks on a journey that honors exceptional educators who have dedicated themselves to transform the lives of underprivileged children through education. Through this conversation, we aim to shed light on their extraordinary achievements, highlighting their efforts to make education accessible to all. हम टीम स्कूल न्यूज आज इन सबको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप सबके साथ इनकी स्टोरीज बांटना चाहते हैं। तो तैयार रहिए सीखने के लिए, प्रेरणा के लिए और वेलकम कीजिए टीचर वॉरियर्स 2024 का। आई वुड लाइक टू फर्स्ट कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर आशीष गोहिल। Ashisha, I would like you to take the podium and tell people about your journey and what have you gone through. Yeah. Good afternoon to everybody one and all present over here. My name is Ashish Gohal. I am from Bhavnagar, Gujarat, and my life story is like that. I want to do something for the society. I will tell you in very short that when I was in 10th, then at that particular time I need to left my study just because of financial crisis. So then I got a loan, I got some amount from the persons, and then I restarted my journey. Currently I am the principal of Amarjyoti Saraswati Vidyalaya and working as a core committee member of Lajja Foundation, which is run by ASIS group of schools. So mainly our main aim is that there are people in all around the world and in India basically, they left the studies just because of so and so reason. So there need to be somebody who need to hold their hands and they need to take them, they need to tell them that you don't have to leave your study just because of so and so reason. So you go ahead, there are people with you, they will help you out and you can reach somewhere. And one more thing I will tell you that about my organization, that the founder of the organization is Mrs. Amarjyoti Gohil and Captain Kirit C. Gohil. They have a visionary concept that we need to help the people and we need to build a bridge between the people who don't have and who have. So the people who will not have something and people who have something will be joining, we will make a bridge between them, and like that we can help the society. And I would like to thank all the candidates present over here. And one more thing, there are so many organizations going on, there are so many NGOs going on, so we can applaud that all NGOs work. And moreover to that, I will thank School News team and Ravi sir as well, that there is someone who is coming ahead to take all of us together in this journey. So if we cannot do that, then if somebody is doing that, then we can push him that yes, we are with you. So just not pushing like not Ravi sir like that, but we will be with you, holding your hand, and we will be always cheering up to you. So Lajja Foundation is a non-profitable organization in which we provide education to the society, to the students who are underprivileged, who are single mother child. Other than that, there are so many crises happened in 2020 after pandemic. So many students have left their studies because of so and so reason. So we are helping them as well. And I will conclude my speech by thanking all of them. Thank you so much.
Thank you so much, Ashish sir. I would like to now call Abhishek Shukla on the stage, please. नमस्ते सभी को नमस्ते। मैं प्रयागराज से अभिषेक शुक्ला और शुरुआत एक जो शिक्षा की संस्था का संस्थापक बहुत छोटा सा काम कर रहा हूं। पिछले 8 वर्षों से प्रयागराज में कुछ बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम कर रहा हूं जो सड़क पे आपको और हमको कभी भीख मांगते हुए मिलते हैं। हम और आप उन्हें 1 रुपए का कॉइन देना पसंद करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ही है दीजिए सिर्फ एक बच्चे को शिक्षा जिससे कोई बच्चा न मांगे बच्चा, क्योंकि एक बच्चा उनमें से डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। और हम पिछले 8 वर्षों से अपने 20 टीम मेंबर के साथ में एक ही कोशिश कर रहे हैं, भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए। 5 बच्चों से शुरू हुआ था ये सफर और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन भी नहीं होता, प्रतिदिन 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रयागराज एक कुंभ सिटी के नाम से जाना जाता है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं इस बार 2025 में प्रयाग में महाकुंभ लगने वाला है। जब आप वहां का प्लान करें तो उसी के पास में आपको एक ओपन पार्क में खुले आसमान में 100 बच्चे 150 बच्चे कुछ बच्चे भी पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि यह शुरुआत काम कर रहा है और यहां शुरुआत हो चुकी है। यही शुरुआत का सफर है। पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। आज 200 बच्चों में 2 बच्चे इंजीनियरिंग में पहुंच चुके हैं। एक बच्चा माइक्रोबायोलॉजी से MSc कर रहा है, उसका मास्टर कंप्लीट हो गया है। आज तक के मेन कवरेज पे निकलता है कि कोई उठाता है कूड़ा, कोई सड़कों पर गिरता है कचरा। ऐसी बेटियों ने यूपी के बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण किए और 85% अंक आए। तो कुछ ऐसी ही कहानियां हो रही हैं, चाहे वो रानी, खुशबू, नेहा, खुशबू और बहुत सारे बच्चे, सना, ये सारे बच्चे हैं जो अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं और हमारी टीम 20 लोगों की टीम इसको साकार करने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ में हम पिछले 8 वर्षों के बाद हमें लगा कि इन बच्चों को एक स्कूलिंग देने की जरूरत होती है। तो हमने पिछले साल 2022 में प्रयागराज का एक पहला प्ले स्कूल स्टार्ट किया, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ हमने 1 रुपए कॉन्सेप्ट बंद किया था भीख देने के लिए। तो उनसे हमने कहा सिर्फ आप 1 रुपए में उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो 1 रुपए इनसे फीस ली जाती है और यकीन मानिए कि वहां पर जो भीख मांगने वाला बच्चा है वो भी आप जैसे स्कूल की तरह से हम उनको शिक्षित देने का काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ में एक ओपन पार्क में ये सारी क्लासेस चलाई जाती हैं और साथ ही साथ हमने 2021 में यूपी का दूसरा सैनिटरी पैड बैंक स्टार्ट किया। और ये इस टॉपिक पे जहां पे बात नहीं होती, जब हम पढ़ाते थे तो वहां पे पता चला कि पीरियड्स के दौरान में जो भी बच्चियां थी और महिलाएं थी वो गंदे कपड़े, घास और राख चीजें इस्तेमाल करती थी पीरियड्स के ड्यूरेशन में। तो हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, क्यों ना इन बच्चों को हमेशा के लिए इस चीजों से मुक्ति दिलाई जाए। तो हमने प्रयागराज का फर्स्ट सैनिटरी पैड बैंक, शुरुआत सैनिटरी पैड बैंक स्टार्ट किया और आज उस पैड बैंक के माध्यम से आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हर महीने 500 ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते खुले हुए हैं और 20,000 से ज्यादा हम लोगों ने खाता जोड़ दिए हैं। यूपी में 2 जगहों पर प्रयागराज और भदोही में हम लोग काम कर रहे हैं। अब बच्चियां पीरियड्स के दौरान में परेशान नहीं होती, वो स्कूल नहीं आना बंद करती। अब वो बच्चियां आती हैं और वो प्रॉपर सर्व नहीं करती हैं पीरियड्स के दौरान, वो गर्व करती हैं क्योंकि पीरियड सेम नहीं है। ये हमारी टीम का मानना है। तो इसी तरीके से हमने आज ये जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग तक पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको
तो इस जगह से बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि पिछले साल खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से यूपी में 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, 3 बच्चियां, नंदिनी, आंचल और इसके साथ में भूमि। वो पूरे यूपी से 3 बच्चियां सिलेक्ट हुई, वो 3 की तीनों बच्चियां हमारी ऑर्गेनाइजेशन से थी और वो कयाकिंग और कैनू में उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स में जाकर के पूरी यूपी का परिचय लहराया, वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखाई। वो बच्चियां आती हैं, छोटी सी स्लम से आती हैं, रोड पर रहती है, लेकिन उनके अंदर हुनर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे चेंज किए जा रहे हैं और प्ले स्कूल के माध्यम से एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। हम सब आपको आमंत्रित करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ध्रुव का और रवि सर का कि आपने यहाँ पे हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Abhishek sir. I would now like to call Lakshmi Chandra sir to the stage, please. Lakshmi. थैंक यू हमारे देश के महान सज्जनों, आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि ध्रुव सर एवं आयोजकों के द्वारा हमें यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं 1980 से पढ़ा रहा हूँ गरीब बच्चों को, जो नालंदा से निकल के आया, राजधानी की ओर बढ़ा और करीब करीब 15-16 साल से राजधानी में गरीब उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, खेतीहर मजदूर के बच्चे, रिक्शा पुलर। हाँ, तो हम सभी से अनुरोध यही करते हैं कि उन गरीब बच्चों को ध्यान में रखिए जो देश का भविष्य को संभालने के लिए कटिबद्ध है। आज हमारा देश संसार के गिने चुने देशों में आ गया है, परंतु देश का कुछ भाग ऐसे है जहां आज भी शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं बन पा रहे हैं। आज हमारे देश कितना उज्ज्वलशाली और गौरवशाली परंपरा को बिखेर रहा है दुनिया में। हम उन विद्वान लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इसके प्रति सजग हों और जो साधारण तबके के बच्चे हैं उनके प्रति भी अपना दृष्टि डालने का प्रयास करें। यही हमारी आपसे अपेक्षा है। और मैं लक्ष्मी चंद्रा नालंदा के उस अस्तित्व को बिखेरने के लिए दिल्ली तक पहुंचा और ऐसा बिखेरा कि हमारा नाम दुनिया में आया। आज यहाँ भी आ गए माननीय सज्जन मिस्टर ध्रुव जी के आमंत्रण पर मैंने ये सुंदर नगरी जयपुर का भी मैंने देखा। बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली से निकल के मैंने जयपुर को भी गुलाबी शहर के रूप में बतलाते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसा हकीकत देखने को नहीं मिला। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह सुंदर नगरी सचमुच में अनोखा है। इसलिए हम आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि जो गरीब बच्चों के प्रति सजग होने के लिए भावना रखते हैं तो हमसे संपर्क करिए। लक्ष्मी चंद्रा जो इसके प्रति सजग होना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी गूगल पर मिलेगा। धन्यवाद। Thank you so much, Lakshmi sir. I would like now to call Parminder sir to the stage, please. Please, a round of applause for him. Okay, just wanted to share, like, after setting up a very progressive school in a city in Gurgaon, because I led Heritage Experiential Learning School for 15 years. So after establishing a progressive school in a city, I had this dream that
and not only dream, but it was like, since I belong to a farming community from Haryana, so I always wanted to set up a school in my village. And again, in the context of, because for me, education as well as farming, both are equally very close to my heart. So I was thinking how I can how we can design a school where we can use farming as a pedagogic medium for teaching and learning. And that's what I think Gandhiji was also, he also talked about in Nai Talim, that if we can use productive works for teaching and learning. So with this dream, I went back to my city, and then we formed a trust, and we wrote a letter to all the 350 panchayats in the Karnal district that Disha India Education Trust wants to set up a community school based on experiential learning principles and Nai Talim. And this time also, I also realized one thing after working in city, in a private school or in a public school, that there are two, like on one side there are private schools or public school, and on the other side they are government school. And both have their own limitations as well as possibilities. So, but I thought, why not to create a third alternative, and that is community schools. And where the basic principle is, can we run the school, and not only run, can we design the school based on the aspirations and the needs of a local community. So that was also an equally, I will say, very core principle of this new school. So on one side, we wanted to take experiential learning to the next level, and also this whole structure of a school, an alternative in terms of community schools. And when we wrote this letter to all the 350 panchayats in the Karnal district, 10 of them responded back, 12. We met all the 12 panchayats. They gave presentations to why their village is a right village for this kind of a project. And finally we identified one and selected, and the village where we have started, they gave us the building to start the village, right? And we got a lot of support from the community. So this is our 5th year now. We have around 175 students. It's still grade 7. Every year we are adding a grade. And we hired teachers from the local village only. Till primary, all our teachers are from the village. And the basic principle is, because it's not only just about teaching, but also the teacher need to have a good understanding of the context also, right? So, and it is working very well for us, the local teachers at the primary level. Of course, in the middle school and senior school now we are thinking, we are hiring teachers we go for campus recruitment to TIS and TPU. So, now in this community school, there are two things which are very interesting that is happening. One, we are not limited to for teaching and learning, we are not limited just to the school. For us, if you ask me, our children for the pottery, they go to the potter's house. For bicycle project, either a bicycle technician comes to a school or they go to a shop. Farming is a regular, it's an ongoing project. All grades, they do farming. They take one crop every year. And our SMC is very proactive. All decisions are taken collectively. So the vision is to create an alternative, progressive school in the village context. Because वो भी दिखाना है कि भाई ये खाली स्कूल ना शहरों में नहीं बनते हैं, और अगर हमने एक विलेज कॉन्टेक्स्ट में बनाया, and if we can take farming also as one of the medium, I think in a long run we will be able to impact farming also. And 80% of our students, they come from the farming background.
दिक्कत जब बड़ा दुख होता है जब एक किसान फैमिली के पास फार्मिंग है पर nobody is interested in farming. They all are leaving villages and coming, either they are going to Gurgaon or they are leaving for US. मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि उनके वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जो बड़ा अपना घर का बिजनेस छोड़ के बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं. तो विद दिस वी ट्राइंग टू क्रिएट दिस एंड विजन इज टू use this community schools will be the more like a resource centers around which we can work with government schools there and try and improve that. So thanks, and thanks for listening. Thanks. Thank you so much, Parminder sir. I would now like to call Vivek Dubey sir to the stage, please. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं भावना के साथ मैं आप सभी को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। मैं विवेक कुमार दुबे एक शिक्षा समिति का फाउंडर पिछले 10 वर्ष से प्रयागराज में झुग्गी झोपड़ी बच्चों को एजुकेट करता हूँ। जैसा कि अभिषेक शुक्ला जी ने बताया, कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स MSc करने के बाद मेरा मन विचलित हुआ और मेरे आगे अनाथ में पीछे पड़ रहा था। मुझे किसी को जवाब नहीं देना था कि मेरी लाइफ का क्या होगा, तो मैं इन बच्चों के लिए चला गया। रिजल्ट में आज मोर देन 1000 बच्चे झुग्गी झोपड़ी के आज पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि हम लोग कोशिश करें कि स्लम वर्ड कभी नहीं यूज करें। झुग्गी झोपड़ी अच्छा है, जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि हरिजन कहा जाए, तो छोटा सा पतंग का चुभता है मुझको, कहीं अगर आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इस समय 24 सेंटर्स हैं, सब महर्षियों के नाम पर हैं। विवेकानंद केंद्र, भगत सिंह केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, सरदार पटेल केंद्र, ऐसे सब 24 सेंटर्स प्रयागराज में हैं। बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। काम मुश्किल है, शिक्षक और बहुत सारे लोग नहीं मिल पाते, इसीलिए झुग्गी झोपड़ी से ही मुझे फालतू में वॉरियर्स कहा जा रहा है। 8, 9, 10 के मैंने 52 वॉरियर्स तैयार किए हैं झुग्गी झोपड़ी के। कक्षा 8, 9, 10 के जो अपने झुग्गी झोपड़ी के मोर देन 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एक्चुअल में दे आर वॉरियर्स। और ये वीडियो पर जाएगी तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में यू आर वॉरियर्स। तुम्हें इस काम को आगे ले जाना है। एक नेता वो होता है जो अपने मरते मरते 100 नेता को खड़ा कर दे, तो वो हमारे वॉरियर्स हैं। और जिस समय झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के हाथ कबाड़ की बोतलों पर रहते हैं, हम लोग शकुंतला देवी कंप्यूटर लैब से 20 कंप्यूटर के साथ 2 कंप्यूटर लैब चला रहे हैं, जिसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स वहां पर बच्चे कंप्यूटर MS ऑफिस सीख रहे हैं। 10 साल का सफर है, मैं सब नहीं कह सकता, इतने शॉर्ट्स मैंने 3 मिनट का समय हमारे पास, इसे थोड़ा सा लिखा हूँ। 3 लड़कियां जॉब में चली गई हैं और एक दिन वो बच्चियां आई, वो भी ऐसे में बैठ के काम करते हैं। उनको लोग मैम कहते हैं। जहाँ की लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में नाच में जाती हैं, रोड लाइट में जाती हैं, कूड़ा उठाते हैं 3 बजे जाकर, और इन्हें आके कह रहे हैं हमसे कि सर बहुत गरीब है। हमने कहा मैं तुमको कक्षा 9 से MA तक पढ़ाया, आज तुम कह रहे हो गरीब है, बीच में 10 साल तो नहीं बोला तुमने। तो उन्होंने कहा सर मैं जब ऐसे ही गई और लोग मुझे मैम सर कहते हैं, मैं वापस यहाँ आती हूँ 9 घंटे जॉब करने के बाद, तो मुझे लगता है कि गरीब है। लेकिन मुझे एक समस्या क्रिएट हो गई है, मेरी एजुकेशन में एक समस्या उत्पन्न कर दी है। आज हम लड़कियों की शादी मुश्किल हो गई है। कितनी लड़कियां किससे शादी करें? 10 फेल रिक्शे वाले से शादी कर लेती हैं, शराब पी के मारता, वो कह रही है अब कैसे मार सकूंगी। तो इसने हमारे सामने दुविधा उत्पन्न कर दिया है। इस दुविधा के सॉल्यूशंस में हमने ये पता किया कि उनकी शादियां कहाँ होती हैं। शंकरगढ़, रीवा, सपना, उत्तर प्रदेश। हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर क्लासेस खोलेंगे और ताकि और जो 10 साल 12 साल की बच्चियां हैं इस फिर हमको ये फेस न करना पड़े कि आपने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। 3 की तो बर्बादी कर दी, लेकिन आगे की मैं बर्बाद कर दूं, इसलिए मैं इनिशिएटिव लिया हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने
यूनिवर्सिटी और ईसीसी के कॉलेज के प्रोफेसर्स, क्लासमेट्स और मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स और फिजिक्स वाला के फाउंडर का नाम लेना चाहूँगा, अलग पांडे जी। अलग भैया का भी धन्यवाद करता हूँ। वो हर साल 40-50 लाख रुपए हम लोग एनजीओ को देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक लाख उनके लिए कि वो सपोर्ट करते हैं। और मैंने जब उनसे कहा कि मुझे शंकरगढ़ देगा 17 क्लास खोलनी है, जैसे कहा 13 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफर किया और शंकरगढ़ में 8 क्लास हमने खोल दिया। और अब हम लोग रीवा 17 की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी हम लोग क्लास खोलेंगे। बस संवेदनाएं बची रही, शिक्षा ऐसी हो, मनुष्य की हार्ट के भीतर की संवेदनाओं को बचा ले, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जाए, यही एक पैमाना हो एजुकेशन का। इसी के साथ मैं इसकी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो जो लोग हेल्पिंग हैंड्स हैं एक महान शिक्षा समिति के, जिन्होंने सहयोग किया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बाकी बच्चों का प्रारब्ध और उनका पुरुषार्थ उनके जीवन की दिशा तय करेगा और उसके लिए वही पूरे क्रेडिट के हैं, हम नहीं हैं। वो धन्यवाद। Thank you so much, sir. So with that, we conclude our Teacher Warriors panel discussion. Though 3 Teacher Warriors could not be with us here today in SGF, Mukti Gupta, Than Singh and Myra Anthony, we thank them also for their time. I would request, if you all want to contribute to their cause or in any way want to get in touch with them, you can reach out to our team and we'll connect you to them. Otherwise, you can find them. They'll be here for the whole day. Towards the end of the SGF, you can connect with them. Now I would like to request Ravi sir to give them their certificates and felicitate them. Lakshmi sir. Abhishek sir. Vivek sir.